अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम अपना लीडरशिप वाला पोर्शन तकरीबन पढ़ चुके हैं। वो लास्ट जो मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसमें भेज दिया था। तो हम स्टार्ट करेंगे बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन वाला पोर्शन। तो उसके लिए हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की ये स्लाइड्स हैं जो आपको अपनी स्क्रीन पर नज़र आ रही हैं। ये मैं आपको सेंड भी कर दूँगा। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसी ब्रांच ऑफ नॉलेज है दैट डील्स विद behaviors within organization. I will show you its definition. So, organizational behavior can be defined as a field of study that investigates the impact that individuals, groups, and structure have on behavior within organization. Organizations for the purpose of applying such knowledge toward improving an organization's effectiveness. तो अगर हम इस डेफिनेशन को डिकम्पोज करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें हम दो तीन बातें कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है दैट इन्वेस्टिगेट्स द इम्पैक्ट दैट इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड स्ट्रक्चर हैव ऑन बिहेवियर विद एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक ऐसा फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि डील करता है उस अफेक्ट से जो कि इंडिविजुअल्स ग्रुप्स और स्ट्रक्चर्स का होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिहेवियर्स पे। और वो हम क्यों करते हैं? ताकि इस नॉलेज को अप्लाई कर सकें ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए। अ, अब आप देखें तो इसमें हम 3 डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं जो कि इंडिविजुअल लेवल है, ग्रुप लेवल है और स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का लेवल है। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में हम इन तीनों लेवल्स के ऊपर स्टडी करते हैं बिहेवियर्स को। हम देखते हैं कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर्स वो क्या है, ग्रुप बिहेवियर क्या है और स्ट्रक्चर्स का बिहेवियर क्या है। और इस नॉलेज को हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को अचीव करने के लिए। अब ये हमारे लिए पढ़ना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इंडिविजुअल्स का जो बिहेवियर है दैट हैज़ अ ग्रेट डील ऑफ इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस or on organizational effectiveness because organizations are made of people. In our last semester or last year, I taught the course Principles and Practices of Management, and in that course we have discussed that uh, what an organization is, and organizations are made of people. So organizations are made up of people. So when we are talking about organizational performance or when we want to enhance organization performance, then definitely we have to focus on enhancing performance of the individuals because organizations are made up of individuals. When we sum up the performance of individuals, then we can estimate the organization performance. If we have an organization that has individuals who are low performers, then definitely organization performance would be on a lower level. On the other hand, if we have an organization that has individuals who are high performers, then organizational performance of such an organization would be on a higher side. So it is important for us to enhance the performance of individuals, and for that purpose, we must be able to understand individual behavior and individual uh, and group behavior because there are also groups that exist in organizations. Nowadays, there is a lot of work in organizations that is done in the form of work groups or teams. So behavior of groups is also very important to be studied because the individual behavior and group behavior are different from each other. No doubt that groups are made up of individuals, but when uh, a same individual is in a group, then his or her behavior might be different than his or her individual capacity. So it's important for us to study behavior of individuals and groups because their behaviors determine their performance, their satisfaction with their job, their organization commitment, and all these things they lead to organization performance. So this that's why organization behavior is a very important is a very important subject, and in organizational science it is of central importance. To sum up our definition, OB is the study of what people do in an organization and how their behavior affects the organization's performance. And because OB is concerned specifically with employment related situations, you should not be surprised that it emphasizes behavior as related to concerns such as jobs, work absenteeism, employee turnover, productivity, human performance, and management. तो हम ये देखेंगे
कि जैसे भी हमने बात की है इस स्लाइड पे जो पहला बुलेट पॉइंट है OB इज द स्टडी ऑफ व्हाट पीपल डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ देयर बिहेवियर अफेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। तो ये वही चीज़ है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की कि वी आर इंटरेस्टेड इन knowing about behaviors of individuals and behavior of people and behavior of groups in the organization because this knowledge can help us in achieving or in enhancing organization performance. चूँकि OB ये ऑर्गेनाइजेशनल रिलेटेड फिनोमेना है, एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड सिचुएशन में अप्लाई हम इसको कर सकते हैं। तो इसलिए हम इसमें इस तरह के बिहेवियर्स देखेंगे जैसे जॉब्स के बिहेवियर्स हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन है, जॉब इन्वॉल्वमेंट है, वर्क प्लेस बिहेवियर है, वर्क प्लेस डेविडेंट बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है, एब्सेंटीज्म है, एम्प्लॉयमेंट टर्नओवर है, प्रोडक्टिविटी है, ह्यूमन परफॉर्मेंस है, मैनेजमेंट है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि इटसेल्फ कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस दिस इज बेस्ड ऑन सम कोर डिसिप्लिन। जैसे कि आप इस पिरामिड शेप में देख सकते हैं कि ये वो वाले डिसिप्लिन हैं, ये वो वाले सब्जेक्ट्स हैं दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड्स द स्टडी एंड रिसर्च इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसमें आप देख सकते हैं कि साइकोलॉजी है, सोशल सोशल साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है। इनको हम वन बाय वन थोड़ा सा देखते हैं। साइकोलॉजी क्या है? द साइंस दैट सीक्स टू मेजर, एक्सप्लेन एंड समटाइम्स चेंज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिसमें हम मेजर्स और जिसमें हम जो सेंटिमेंट्स हैं और इमोशंस हैं और बिहेवियर ऑफ ह्यूमन है उनको हम स्टडी करते हैं। तो चूंकि हम ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करेंगे तो इसमें जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो इंडिविजुअल होता है और इसका कॉन्ट्रीब्यूशन टू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या है जी? लर्निंग, मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, इमोशंस, परसेप्शन, ट्रेनिंग, लीडरशिप, इफेक्टिवनेस, जॉब सेटिस्फेक्शन, individual decision making, performance appraisal, attitude, measurement, employee selection, work design and work success। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजी से रिलेट करती हैं। अगर आप थोड़ा सा तो जो जो रिसर्च है OB की, अगर आप उसको देखें तो आप ये देखेंगे कि इसमें साइकोलॉजी का कितना बड़ा रोल है। और हमारी जो बहुत सारे जर्नल्स हैं, बड़े-बड़े जर्नल्स बिजनेस के और मैनेजमेंट के, ऑर्गेनाइजेशन साइंस के, वो साइकोलॉजी के जर्नल्स हैं एक्चुअली। जैसे जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी है, पर्सनल साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी रिसर्च एंड बिहेवियर मैनेजमेंट है और अप्लाइड साइकोलॉजी एंड इंटरनेशनल रिव्यू। तो इस तरह के काफ़ी जर्नल्स हैं जो कि साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के हैं जिनमें बिजनेस के लोग पब्लिश करते हैं। बल्कि उन जर्नल्स में सिर्फ बिजनेस के लोग ही पब्लिश करते हैं और उसकी वजह सिर्फ यही है क्योंकि वो जर्नल्स एक्चुअली इस जो एम्प्लॉय साइकोलॉजी से डील करते हैं। इसके बाद है सोशल साइकोलॉजी, एन एरिया विद इन साइकोलॉजी दैट ब्लेंड्स concepts फ्रॉम साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी एंड दैट फोकसेस ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ पीपल ऑन वन एनदर। तो इसमें जो सोशल साइकोलॉजी की ये वो ब्रांच है जो कि सोशल इश्यूज के साथ डील करती है। तो इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस ग्रुप होता है क्योंकि जब हम सोशल इश्यूज की बात करते हैं तो वो लोगों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन उसमें आता है और जब हम लोगों के एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन की बात करते हैं तो फिर उसमें ग्रुप्स की बात आ जाती है। सोशियोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ पीपल इन रिलेशन टू देयर फेलो ह्यूमन बीइंग्स। यूनिट ऑफ एनालिसिस में है अगेन ग्रुप। और इसमें ये चीजें ग्रुप डायनामिक्स है, वर्क टीम्स, कम्युनिकेशन, पावर, कॉन्फ्लिक्ट, इंटर ग्रुप बिहेवियर, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। तो उसमें ये चीजें आ जाती हैं। एंथ्रोपोलॉजी है द स्टडी ऑफ सोसाइटीज टू लर्न अबाउट ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर एक्टिविटीज। तो उसमें जो यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है और ग्रुप है। अच्छा, ये जो एग्जिबिट 1.3 है, ये जो डायग्राम है इसको आप जरा केयरफुली देखें। इसमें
आप ये देख सकते हैं कि इसमें साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी जो है ये इसमें कंट्रीब्यूट किस तरह से कर रहे हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका फोर्थ कॉलम है जो कि यूनिट ऑफ एनालिसिस है और नेक्स्ट उसकी आउटपुट है। तो जो इसका यूनिट ऑफ एनालिसिस है वो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में देखा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की डेफिनेशन में कि इसमें जो 3 लेवल्स ऑफ एनालिसिस हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें यूनिट ऑफ एनालिसिस वाले कॉलम में ये 3 हमारे पास ये तीनों लेवल्स आ रहे हैं, इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। और इनकी आगे आउटपुट आ रही है स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इसलिए ये इस डायग्राम को, इस एग्जिबिट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी है वो इन 3 लेवल्स के ऊपर होती है। तो अगेन ये आप वो भी मॉडल देख सकते हैं, इसमें इंडिविजुअल लेवल है, ग्रुप लेवल है और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम लेवल है। तो जो स्टडी वेरिएबल्स की टाइप्स ये हैं आपके सामने। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट जो वेरिएबल्स हैं वो हम पढ़ेंगे जो ओबी में इंपॉर्टेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। उनमें है प्रोडक्टिविटी है, एब्सेंटीज्म है, टर्नओवर है, डेबिट वर्कप्लेस बिहेवियर है, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है, जॉब सेटिस्फेक्शन है। और ये हम सारे बारी बारी पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ और भी हैं जैसे कि जॉब सेटिस्फेक्शन आ जाएगा हमारे पास। हाँ जी ये है। तो इनको हम वन बाई वन पढ़ते हैं। हाँ जी, ऑर्गेनाइजेशन सिटीजनशिप बिहेवियर भी आएगा, जॉब सेटिस्फेक्शन भी आएगा। तो इनको हम वन बाई वन पढ़ते हैं। सबसे पहले है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इनपुट्स टू आउटपुट्स एट लोएस्ट कॉस्ट इंक्लूड्स द कांसेप्ट्स ऑफ इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमारा लास्ट सेमेस्टर था, जब हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सब्जेक्ट पढ़ा था। तो उस वक्त हमने इसमें ये पढ़ा था कि इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्रोडक्टिविटी या परफॉर्मेंस क्या है? एन ऑर्गेनाइजेशन is productive if it achieves its goals and does so by transferring inputs to outputs at the lowest cost. As such, productivity implies a concern for both effectiveness and efficiency. A hospital, for example, is effective when it successfully meets the needs of its clientele. It is efficient when it can do this at a low cost. We can also look at productivity from the perspective of the individual employee. A research study conducted by an organization found that a 5% improvement in employee attitudes leads to a 1.3% increase in customer satisfaction, which in turn translates into a 0.5% improvement in revenue growth. तो हम ये देख सकते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है वो यही है कि जो एम्प्लॉइज हैं वो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं। और एम्प्लॉइज की जो प्रोडक्टिविटी है दैट वुड अल्टीमेटली और एक्चुअली डिटरमिन प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें वो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों चीज़ें आ जाएंगी। अ, जैसे फॉर एग्जांपल जो हॉस्पिटल है कोई, तो वो उस वक्त वो इफेक्टिव कहलाएगा जब वो अपने क्लाइंट्स की नीड्स को पूरी तरह से वो उनको फुलफिल करता है। और जैसे अब हम बात कर रहे थे पहले जब हमने डिफाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, तो जैसे हम उसमें बात कर रहे थे कि ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को स्टडी करें। तो आप देख सकते हैं कि एक ये रिसर्च स्टडी जो कंडक्ट की गई उसमें ये देखा गया कि एक 5% इम्प्रूवमेंट जो एम्प्लॉई एटीट्यूड में है वो उसमें 1.3% इंक्रीज उससे कस्टमर सेटिस्फेक्शन में आती है और अल्टीमेटली 0.5% इम्प्रूवमेंट इन रेवेन्यू ग्रोथ आती है। यानी अल्टीमेटली हम उस चीज़ को डॉलर वैल्यू के साथ लिंक कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी एब्सेंटीज्म। एब्सेंटीज्म क्या होता है? एब्सेंट का वर्ड आपको पता ही है, एब्सेंट का मतलब होता है गैर हाजिर होना। एब्सेंट जैसे हम कोई जब स्टूडेंट नहीं आता क्लास में तो हम कहते हैं कि वो एब्सेंट है। इसी तरह अगर कोई अपने काम पे नहीं आता तो हम कहते हैं कि वो एब्सेंट है। तो एब्सेंटिज्म क्या है? एब्सेंटिज्म इज डिफाइंड एज अ फेलियर टू
रिपोर्ट टू वर्क। तो जो फेलियर टू रिपोर्ट टू वर्क है उसको हम कहते हैं एब्सेंटीज्म। अच्छा, एब्सेंटीज्म इज अ ह्यूज कॉस्ट एंड अ डिसरप्शन टू द एम्प्लॉयज। अब ये एब्सेंटीज्म क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए स्टडी करना, क्योंकि ये इसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है और ये एक डिसरप्शन है, एक डिस्टर्बेंस है टू द एम्प्लॉयज। क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो लोग जॉब देते हैं लोगों को, उनके लिए एक ये बहुत बड़ी कॉस्ट है। अ सर्वे फाउंड दैट द एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट टू यूएस एम्प्लॉयज ऑफ unscheduled absence is $789 per year per employee, and this doesn't include lost productivity or the additional cost for overtime pay or hiring temporary employees। तो एक सर्वे में ये देखा गया कि जो यूएसए के एम्प्लॉइज हैं उनकी जो अनस्केड्यूल्ड एब्सेंस है वो $789 पर ईयर पर एम्प्लॉई उनकी वो कॉस्ट है। क्योंकि अ, वो जब भी एम्प्लॉई एक दिन काम पे नहीं आता तो जाहिर है कि उसकी जगह पे उसका काम कोई और करता है या वो काम नहीं होता, तो उसकी जो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की है वो इफेक्ट होती है उस दिन के लिए। तो और अभी इसमें जो लॉस प्रोडक्टिविटी या कोई एडिशनल कॉस्ट है वो भी इसमें शामिल नहीं है, तो इसलिए एब्सेंटीज़म एक बहुत बड़ा कंसर्न है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप अगर यहाँ पाकिस्तान में देखें तो ये बात हम अक्सर सुनते हैं कि जो गवर्नमेंट के महकमे हैं, खासतौर पर जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, वहाँ पे लोग एम्प्लॉइज वो गैर हाजिर होते हैं। ये हम कहते हैं ना कि ये शहर की सड़कों की सफाई नहीं होती, क्योंकि जो सफाई करने वाले हैं वो गैर हाजिर होते हैं। स्कूलों में आप जाएँ तो टीचर गैर हाजिर होते हैं, आप बैंक किसी में जाएँ सरकारी बैंक में, वहाँ पे उनका जो स्टाफ है वो गैर हाजिर होता है। तो एब्सेंटीज़म एक इतना बड़ा प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लोग सफ़र करते हैं, अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन भी सफ़र करती हैं। तो इसलिए एक ये इसको स्टडी करना और एब्सेंटीज़म की क्या रीज़न्स हैं, उन रीज़न्स को ठीक करना और एब्सेंटीज़म के रेट को कम करना, ये भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है जी टर्नओवर। टर्नओवर होता है टर्नओवर होता क्या है? वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी परमानेंट विथड्रॉल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल अल्फाज में टर्नओवर होता है जॉब छोड़ जाना। सिंपल अल्फाज में टर्नओवर क्या होता है? जॉब छोड़ जाना। अब जो जॉब का छोड़ जाना है लोगों का, वो है टर्नओवर। अब टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए कैसा है, अच्छा है या बुरा है? टर्नओवर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरा है अगर हम इसको देखें इसकी ट्रू सेंस में। क्यों? क्योंकि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज का जो टर्नओवर रेट है वो हाई है, यानी लोग जल्दी जल्दी जॉब जॉब छोड़ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, है ना? तो वहाँ पे लोग क्यों नहीं स्टे करते ऑर्गेनाइजेशन में? अगर वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है, अच्छा पे कर रही है, वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, तो लोग वहाँ पे स्टे करेंगे। लेकिन लोग वहाँ पे स्टे नहीं कर रहे, इट मीन्स देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो ये चीज़ अलर्ट कर देगी आने वाले जो फ्यूचर जो हैं पोटेंशियल एम्प्लॉइज़ हैं उनको, कि वो भी उस ऑर्गेनाइजेशन में ना जाएँ, या जाएँ तो वो सोच के जाएँ, या वो ये ज़रूर सोचेंगे कि जो ब्राइट और यंग और जो फ्रेश और ब्राइट कैंडिडेट्स हैं कि हम किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जॉइन करने लगे हैं जहाँ पे लोग जल्दी-जल्दी जॉब छोड़ जाते हैं। तो वो सोचेंगे कि ना इसकी रीज़न क्या है, जो लोग वहाँ से जॉब छोड़ रहे होंगे वो उनसे मिलेंगे, उनसे पूछेंगे और फिर शायद वो नहीं जॉइन करेंगे इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगी। दूसरी बात, अगर जब लोग जल्दी-जल्दी छोड़ के जाते हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए फिर उनको और एम्प्लॉइज़ हायर करने पड़ते हैं, और उनके लिए हायरिंग के लिए रिक्रूटमेंट की कॉस्ट आती है, सिलेक्शन की कॉस्ट आती है, उनकी ट्रेनिंग की कॉस्ट आती है। तो ये वाली सारी कॉस्ट जो हैं ये भी ऑर्गेनाइजेशन को बियर करनी पड़ती हैं। तो टर्नओवर की कॉस्ट बहुत हाई है। द कॉस्ट फॉर अ टिपिकल आईटी कंपनी इन यूएसए टू रिप्लेस अ प्रोग्रामर और सिस्टम एनालिस्ट हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट $34,100। यानी अमेरिका में एक जो प्रोग्रामर है या जो सिस्टम एनालिस्ट है, उसको रिप्लेस करने की कॉस्ट वो आप देख लें कि $34,000 है। और टर्नओवर रेट भी काफ़ी हाई है, जैसे यूएसए में 36% पर ईयर है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रेट है। और एक बात आती है पॉजिटिव टर्नओवर। इस टर्नओवर ऑलवेज बैड, इसको हम आंसर कर सकते हैं, है ना? टर्नओवर इज़ नॉट ऑलवेज बैड। क्यों? क्योंकि जब हम कोई ऐसा टर्नओवर देखते हैं जिसमें कोई ऐसे एम्प्लॉइज़ वो जॉब छोड़ जाते हैं जो कि प्रोडक्टिव नहीं है, जो अच्छा काम नहीं कर रहा है, जो दूसरों के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो फिर उनका तो टर्नओवर अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह हमें वो जैसे कहते हैं गुड रिडंस खास कम जहाँ बात, तो इस तरह के एम्प्लॉइज से हमारी जान छूट जाएगी तो ये अच्छी बात है। लेकिन
ये सिर्फ उसी सूरत में अच्छा है कि अगर जो छोड़ने वाले एम्प्लॉइज हैं अगर वो ऐसे हैं जो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बुरे हैं। और एक पीछे हमने ऊपर बात की सबसे पहले बुलेट पॉइंट में वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी परमानेंट विड्रॉल। अब जो वॉलंटरी तो हमें समझ में आता है, ठीक है, टर्नओवर होता है। इनवॉलंटरी क्या होता है? इनवॉलंटरी से मुराद ये है कि बाज़ दफ़ा लोग जॉब छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें कोई ना कोई ऐसी रीज़न होती है कि जॉब छोड़ना पड़ती है। फ़र्ज़ करें किसी की फैमिली किसी दूसरी सिटी में मूव हो गई, तो वो भी उनके साथ मूव हो गया, या अगर कोई ख़त्म होना है जब वो मूव हो गई, तो फिर वो अपनी उस वो जॉब को वो कंटिन्यू नहीं कर सकती। किसी जैसे पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए प्रॉब्लम होती है, अगर किसी खातून की शादी हो गई और वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई, तो उसके लिए भी शायद वो अपनी जॉब को कंटिन्यू करना पॉसिबल ना हो। अ, और इसी तरह किसी के लिए फ़र्ज़ करें उसकी कंपनी उसकी ट्रांसफ़र कर देती है किसी दूर-दराज़ सिटी में, बलूचिस्तान में, तो वो भी उसके लिए शायद पॉसिबल ना हो। तो इस तरह टर्नओवर जो है वो इनवॉलंटरी भी हो सकता है। नेक्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल जो ओबी का वो है डेविड वर्कप्लेस बिहेवियर। और डेविड वर्कप्लेस बिहेवियर क्या होता है? वॉलंटरी बिहेवियर दैट वायलेट्स सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशनल नॉर्म्स एंड देयरबाय थ्रेटन द वेल-बीइंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड और एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। तो डेविड वर्कप्लेस बिहेवियर ऐसा वॉलंटरी बिहेवियर है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के खिलाफ है और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के खिलाफ है। और ये ऐसा बिहेवियर है जो कि दूसरे एम्प्लॉइज की या कोलीग्स की उनकी वेलबींग को ये थ्रेटन करता है, वायलेट करता है। और ऑर्गेनाइजेशन को भी, ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी को भी ये थ्रेटन करता है या वायलेट करता है। तो इसमें हम देख जैसे फॉर एग्जांपल स्टीलिंग है यानी चोरी, प्लेइंग लाउड म्यूजिक है। आप ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे आप अपना लाउड म्यूजिक प्ले करते हैं, आप वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी चोरी कर लेते हैं। जैसे आपने स्टेशनरी चोरी कर लिया, आपने कोई ये पेपर्स का रिम चोरी कर लिया, कोई और पेंसिलें चोरी कर ली, लोग इस तरह कर लेते हैं ना। वायलेशन ऑफ ड्रेस कोड, अब ड्रेस कोड वो नहीं पहन के आते जो आपको पहनना चाहिए। अपने कलीग्स की आप इंसल्ट करते हैं, सैबोटेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स जो है अ, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएँ। तो ये इसको कहते हैं डेविड वर्कप्लेस बिहेवियर। तो ऑब्वियसली ये बिहेवियर जो है ये डिज़ायर्ड नहीं है, ये अनवांटेड है। और ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह का बिहेवियर जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसको भी हमारे लिए स्टडी करना ज़रूरी है कि हम इसको स्टडी करें और देखें कि ये बिहेवियर किस वजह से होता है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशनल सिटीज़नशिप बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल सिटीज़नशिप बिहेवियर क्या है? A discretionary behavior that is not part of an employee's formal job requirements, but that nevertheless promotes the effective functioning of the organization. तो ये बिहेवियर एक ऐसा बिहेवियर है जो कि किसी एम्प्लॉई की जॉब डिस्क्रिप्शन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इस बिहेवियर में एम्प्लॉइज एंगेज होते हैं फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर द सेक ऑफ देयर कोवर्कर्स और देयर कोलीग्स। तो ये वॉलंटरी बिहेवियर है। डिस्क्रिशनरी का मतलब है जो जिसको वॉलंटरी किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर कोई एम्प्लॉयी छुट्टी पे है, तो उसका कोलीग उसकी जगह पे उसकी उसका काम भी कर लेता है। तो अब वो जो जब उसका कोलीग उसकी जगह पे काम करेगा, उसका भी काम करेगा, तो वो उसमें 2 पर्पस सर्व कर रहा है। एक तो वो अपने कोलीग जिसने छुट्टी की है, उसका काम वो कर रहा है, दूसरा वो ऑर्गेनाइज़ेशन का भी काम कर रहा है कि ऑर्गेनाइज़ेशन के जो कस्टमर्स हैं या जो भी काम है वो ना रुकें, वो काम हो जाए। तो इस तरह ये एक अच्छा बिहेवियर है, ये एक पॉजिटिव बिहेवियर है। और ऑर्गेनाइज़ेशंस ये चाहती हैं कि उनके एम्प्लॉइज़ इस तरह के बिहेवियर में एंगेज हों। तो इसमें टीम वर्क है, वॉलंटियरिंग फॉर एक्स्ट्रा वर्क है, अवॉइडिंग अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स है, रिस्पेक्टिंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ग्रेसफुली टॉलरेटिंग ओकेजनल वर्क रिलेटेड इम्पोजिशंस हैं। उसके बाद है जॉब सैटिस्फैक्शन। जॉब सैटिस्फैक्शन का सिंपली मतलब ये है कि कोई एम्प्लॉयी अपनी जॉब से किस हद तक सैटिस्फाइड है। अ जनरल एटीट्यूड, नॉट अ बिहेवियर टुवर्ड वन्स जॉब, अ पॉजिटिव फीलिंग ऑफ वन्स जॉब रिजल्टिंग फ्रॉम एन इवैल्यूएशन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब कोई एम्प्लॉयी अपनी जॉब के बारे में सोचता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इवैल्यूएट करता है और वो ये देखता है कि वो उन चीज़ों से सैटिस्फाइड है, तो उसको हम कहते हैं कि वो उसकी जॉब सैटिस्फैक्शन का लेवल हाई है।
ठीक है जी, ये चैप्टर हमारा हो गया खत्म। तो इंशाल्लाह मैं फिर कल नेक्स्ट चैप्टर की ना वीडियो रिकॉर्ड करके तो वो इंशाल्लाह आपको भेजूंगा।